Hello students, in our today's lesson, in our today's video, we are going to learn about classifications of nouns. Number, it means those nouns which nouns we see in our all the lessons singular and plural form. Okay, हम इस लेसन में आज सीखने वाले हैं noun, numbers. It means singular noun and plural nouns. What is meant by singular and plural nouns? So let us learn next point. Here you have given singular. What is meant by singular? Singular means just one, means one. Only one thing or place or person, that is called singular nouns. And what is meant by plural? Plural means more than one. एक से भी जितने ज़्यादा आपके सामने थिंग्स आएंगे, प्लेस आएंगे या फिर पर्सन्स आएंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल फॉर्म्स. और सिर्फ एक ही होगा, एक ही पर्सन होगा, एक ही थिंग होंगी तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म्स. ओके, so let us example here. You can see here apples picture. Okay, in left side you can see one apple only just, and right side you can see 4 apple. Okay, then how do we say it? We say this called one apple. Okay, just only apple, one apple. And here we says 4 apples, not apple, apples. Okay, it means more than one apples. We see here in our left side there is only one apple, and in our right side here we can see 4 apples. It means more than one apples. Okay, and when we write that type of nouns, here we are just changing forms of that singular forms. Okay, that how we are going to next point. But here you can see only one apple. It means singular form of this apple. And here 4 apples, not apple. You see here apples. It means more than one apples. It means these apples in plural forms. Okay, so here the word apple is in singular form. Okay, this word is apple, it is singular form, and the word apples is in plural forms. This apples word, it is in plural forms, and apple, this word is in singular forms. Okay students, hopes you understand. So let us learn again what is meant by singular and plural. Here you can see the difference between singular form and plural form. What is meant by singular? See here. When a noun shows only one person, one thing, or one animal or place, it's called singular noun, singular number. Okay. For example, book, apple, boy, city, box, leaf, etc. It means book means one book just. Apple, one apple. Boy, one boy. City, one city. Box, one box. Leaf, one leaf. In this way, when we see one thing, any of the one thing, that is called singular number. Okay, and what is meant by plural number? See here. When a noun shows more than one person, thing, animal, place, it's called as a plural number. It means when we see the more than one people, more than one thing, any another thing, but more than one, that is called plural form. Okay, see the example. Books, apples, boys, cities, boxes, leaves, etc. What is the difference between these examples and these examples? Yes, we can see here just one book, one apple, and in this right side we see many of the books, many apples. It means more than one. Here we see the more than one examples, and here we see just one example. Okay, it means when a noun shows only one thing, any another thing, that is called singular form, and when we shows that one of the more than one things, that called plural forms. Hopes you understand students what is meant by noun and its singular form and plural form. Okay, now we are going to learn how do we change that singular form into plural forms. Okay, this type: book, books, apple, apples, boy, boys, city, cities, box, boxes, leaf, leaves. In this way, how do we change the singular form into plural form? And there are some of the rules to make it singular into plural. So let us learn about that rules. Here students, you see here rules to make singular into plural. नाउन्स को हमें सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है
उसके जो कुछ रूल्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं अभी। तो रूल नंबर फर्स्ट यू कैन सी हियर, मोस्ट नाउन टेक यस डैश। यस मीन्स इस डैश की जगह क्या होता है, हमारा नाउन का नेम आता है, ओके, और उसके आगे उस नेम को, उस नाउन को यस लगाया हुआ हमें दिखता है। तो वो यस हम कब लगाते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, मोस्ट नाउन टेक यस टू मेक इट प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन ऐसे हैं कि उस नाउन को हम यस लगा के उनका सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी एग्जांपल्स। सिंगुलर फॉर्म में इस तरह से नाउन्स आपको दिखेंगे और प्लूरल फॉर्म्स में आपको यस लगाने के बाद इस तरह से दिखेंगे। सो व्हाट इज द एग्जांपल, सी हियर, एग। एग, दिस इज अ वन एग जस्ट, ओके। एग मीन्स सिंगुलर फॉर्म एग एंड प्लूरल फॉर्म एग्स। इस एग को हमने आगे क्या किया है, सिर्फ यस ऐड किया है। स्पेलिंग E-double-G, इस एग नाउन के आगे हमने यस ज्वाइन करके उसका सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म चेंज किया है। सेम लाइक दिस, ट्री ट्रीज, कैट कैट्स, बॉय बॉयज, गर्ल girls. It means these all singular nouns, it has added just yes at the ending and it makes a plural form of that noun. Okay, hope you understand. यहाँ पे क्या किया है कि ऐसे नाउन्स कुछ होते हैं जिसके आगे हमको यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ आवर सिंगुलर इनटू प्लूरल मेकिंग, ओके। नाउ लेट अस सी द सेकेंड रूल। Singular nouns ending in yes, sh, double s, ch, o, x or z takes es at the end to make it plural. Okay, यहाँ पे क्या है कि ऐसे कुछ nouns होते हैं जिसका ending, कुछ nouns का ending yes से होता है, sh से होता है, double s से होता है, ch से होता है, o से होता है, x से होता है या फिर z से होता है। जिस नाउन्स का एंडिंग इन सारे वर्ड से होगा उस वर्ड के आगे हमें क्या करना है, es ऐड करना है। उस वर्ड के आगे हमें es ऐड करना है, किस लिए, हमारा जो नाउन है सिंगुलर नाउन उसको प्लूरल नाउन बनाने के लिए, ओके। जब भी हमें सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाना होगा उस टाइम अगर आपके सामने इस तरह के कुछ वर्ड्स आएंगे जिस वर्ड्स के लास्ट में, एंडिंग में WS, CH, O, X, यस, इस तरह के जो लेटर्स होंगे उस लेटर्स के उस वर्ड्स वाले मतलब वर्ड्स के आगे हमें क्या करना है, es ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, ओके। लेट अस सी द एग्जांपल। लेफ्ट साइड यू हैव सीन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड प्लूरल वर्ड, राइट साइड, ओके। सो लेट अस सी फर्स्ट फॉक्स, FOX। अभी यहाँ पे जो फॉक्स वर्ड दिया है उसका एंडिंग किससे हुआ है, x वर्ड से हुआ है। इन दिस रूल वी आल्सो सी दैट वर्ड्स दैट एंडिंग WS, CH और x in this example, okay. So here we see x ending of that word, so FOX, fox, it makes plural FOXES, foxes. क्या किया है हमने, यहाँ पे जो वर्ड एंडिंग हुआ है x से, ऐसे वर्ड्स को हमें es लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। It means fox, foxes. You can see more examples here, bus, buses, class, classes, watch, watches, tomato, tomatoes, brush, brushes, okay. In this way, left side in singular form of that word you can see here that ending x, next word yes, next word WS, next word CH, O and SH। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसका एंडिंग इन वर्ड्स से होता है, ऐसे वाले वर्ड्स के आगे हमें कौन सा लेटर यूज करना है, ES। इस लेटर को हमें उसको ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। यू कैन सी हियर ऑल द एग्जाम्पल्स, ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड। Now let us see the third example. It means third rule. If a noun ends in a consonant plus y. If a noun ending with a consonant plus y, the plural is formed by changing y into IES to make its plural. अभी क्या करना है हमें, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड्स का एंडिंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर होता है प्लस लास्ट में y आता है। कॉन्सोनेंट लेटर प्लस y, इस तरह का हमारा वर्ड जब भी आएगा तो उसका हमें प्लूरल बनाने के लिए y की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, I यूज़ करना है। इट मीन्स IES, ये तीनों वर्ड आपको y की जगह पे ऐड करना है और उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर, FLY, फ्लाई। हियर वी कैन सी y ending of that word and before its y we can see here consonant letter L. L is a consonant letter plus y. It means consonant plus y we can see here, okay.
So how do we make it plural form? So let us see here. Flies, fly, flies, FLIES. तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है, जब भी हमें कॉन्सोनेंट प्लस वाई लेटर दिखेगा, इट मीन्स देखो यल हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है और प्लस वाई आया है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इस तरह का जब भी वर्ड आएगा तो उसका क्या करना है, वाई की जगह हमें IES डालना है। तो FL का FL रह गया और वाई की जगह हमने क्या ऐड किया, IES। इट मीन्स फ्लाई, फ्लाइज। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल्स, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, cities, country, countries. In this way, when we see the consonant plus Y word, that time we drop that I letter and we use instead of that I letter IES. Y letter, Y की जगह पे हमें IES यूज करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. In this all the examples you can see here of that rule. Okay, hopes you understand. Now look at the fourth rule of making singular into plural form. So let us learn fourth rule. If a noun ends in a vowel plus y, the plural is formed by adding yes at the ending. Now here हमें क्या करना है, इसका पहला वाला जो रूल था उसमें हमने क्या देखा था, यह देखा था कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इस तरह से अगर हमारा वर्ड आता है तो उसकी जगह वाई की जगह वाई को ड्रॉप करना है और IES से उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. ओके, नाउ इन दिस रूल नंबर 4 हियर हमें देखना है कि वॉवेल प्लस वाई, हमारा जो नाउन का एंडिंग आएगा, हमारा जो वर्ड्स का एंडिंग आएगा वो वॉवेल प्लस वाई होगा. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे अगर वर्ड्स हमें मिलेंगे वॉवेल्स प्लस वाई के मिलेंगे तो उसके आगे सिर्फ यस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. सो लेट अस सी द एग्जांपल. TOY, यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई लास्ट में एंडिंग है वाई से और वाई के बिफोर हमारा वॉवेल आता है O. ओके, इट मीन्स वॉवेल लेटर प्लस वाई, वॉवेल प्लस वाई, इस तरह से वॉवेल प्लस वाई यहाँ पे हमें जब दिखता है, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं उस नाउन्स के आगे, उस वर्ड्स के आगे हमें सिर्फ यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. इट मीन्स TOY टॉय, TOYS टॉयज. Okay, in this way, see the more examples. DAY, day, vowels plus consonant we can see here. Its plural form DAYS, days. Just add yes letter, okay, and make it plural. KEY, keys, key, and KEYS, keys. Okay. BOY, boy, BOYS, boys. Monkey, monkeys. In this way, we see in this rule vowel plus Y letter. And in this letter, in this word, we change its plural form by adding yes. Okay. So let us see the next rule. It means fifth rule. If a noun ending in F or FE, okay, F or FE, it takes VES in place of F or FE to make its plural form, to form the plural. Okay. अभी हमें इस रूल्स में क्या बताया गया है कि जब भी हमारा नाउन का एंडिंग होगा, जब भी हमारा वर्ड्स का एंडिंग होगा, किससे, यफ वर्ड से या फिर यफी वर्ड से, जब भी हमारा कोई भी वर्ड्स या फिर कोई भी नाउन्स का एंडिंग यफ से या फिर FE से होगा तो उस टाइम उस F की जगह पे या फिर FE की जगह पे हमें VES यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ F और FE. F या फिर FE की जगह पे VES यूज़ करना है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. Okay, let us see the example. In left side singular form is given and right side plural form is given. Okay, see the example. LIFE, life. We can see here FE letters. Last ending, this noun is ends with FE. इस nouns का, इस word का ending जो होता है वो FE word से हो रहा है. In this way. Okay, so in our rule also says those nouns which ends with F or FE, it drops FE word and write down VES. LIFE, life. LIVES, lives. Okay. It means यहाँ पे जो भी हमारा FE वर्ड आता है उसकी जगह पे उसको ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, VES लगाना है, ये लिखना है. इसके बाद हमें जब भी हम F और FE दिखेगा तो उसको हमें ड्रॉप करके उसकी जगह पे VES राइट डाउन करके उसका सिंगुलर वर्ड का प्लूरल फॉर्म करना है. सी द मोर एग्जाम्पल. WIFE, वाइफ. WIVES, wives. Okay. CALF, calf.
इट मीन्स यहाँ पे हम यफ देख रहे हैं सिर्फ. ओके, फर्स्ट टू सेकेंड एग्जाम्पल्स में हमने देखे एफ ई लेटर्स एंडिंग आए थे. अभी यहाँ पे सिर्फ यफ आया है, CALF, काफ. इट मीन्स अभी इस यफ को सिर्फ ड्रॉप करके उसकी जगह पे VES यूज करना है. CALVES, काव्स. ओके, LEAF, लीफ. LEAVES, लीव्स. ओके, यहाँ पे भी हमने यफ को ड्रॉप किया, यफ की जगह पे VES यूज करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया. सेम लाइक दिस, KNIFE, knife. KNIVES, knives. Okay, in this way, when we see F or FE ending nouns, that time we drop this F or FE and write down VES to make its plural forms. Hopes you understand. Let us see the next rule. Here, rule number 6. We can see here some nouns ending in F, it takes only yes. It means कुछ nouns ऐसे भी होते हैं जिसका ending यफ से होता है, बट उस नाउन में हमें सिर्फ यस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ता है. विच आर दैट दोज नाउन्स? सी हियर द एग्जाम्पल्स. ROOF, रूफ. HOOF, ऊफ, हुप. PROOF, proof. CHIEF, chief. Okay, in this way, in those examples, we can see here ending yf, but these nouns change plural forms by adding just yes. Okay, roof, roofs. Hoop, hoops. Proof, proofs. Chief, chiefs. In this way, कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं जिसके आगे जिसका एंडिंग यफ से होता है, बट उसका सिर्फ यस ज्वाइन करके प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ता है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द रूल नंबर 7. Nouns ending in a consonant plus O generally form their plurals by adding es at the ending. अभी हमें इस तरह के कुछ नाउन्स मिलेंगे जिसका एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस ओ से होगा. ओके, तो इस तरह के जब भी नाउन्स हमें दिखेंगे तो उसका जो प्लूरल फॉर्म बनाना है वो किस तरह से बनाना होगा? ES ऐड करके, बाय एडिंग ES एट द एंडिंग. उस वर्ड्स के आगे हमें ES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. लुक एट द एग्जाम्पल. हीरो, HERO, हीरो. ओके, वी कैन सी हियर एंडिंग ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस O. It means last word we can see here O, and before that O word, before this we can see here R consonant letter. It means in this way consonant plus O, this type of nouns we change its plural form by adding ES, HEROES, heroes. यहाँ पे कुछ भी वर्ड ड्रॉप नहीं करना है, जैसे कि वैसे वो वाला वर्ड लिखना है और उसके आगे जस्ट हमें ES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. इट मीन्स HERO, hero, heroes. Mango, mangoes. Buffalo, buffaloes. Potato, potatoes. Okay, in this way, in these examples, in these nouns, we can see consonant plus O, consonant plus O. Every example we can see here consonant plus O letters, and on that nouns we change its adding ES to make it plural forms. Okay, hopes you understand. यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे कुछ नाउन्स हमें मिलेंगे जिसका एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस ओ से होगा, उसका प्लूरल फॉर्म हमें उसके आगे ES लगा के करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 8. सम नाउन्स चेंज दियर स्पेलिंग्स इनसाइड वॉवेल्स टू मेक इट्स प्लूरल. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उसका पूरा स्पेलिंग जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है. ओके, और पूरा स्पेलिंग चेंज करने के बाद उसका सिंगुलर इंटू प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है. लुक एट द एग्जांपल. फुट, FOOT, फुट. अभी इसका प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाया है? FEET, फीट. इट मीन्स वी कैन चेंज इट्स वॉवेल्स लेटर. वी चेंज इट्स वॉवेल्स लेटर. FOOT, फुट. उसमें जो वॉवेल्स लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं OO, उसका चेंज हमने किसमें किया है? EE से किया है. FEET, फुट इंटू फीट. इन दिस वे we change these some nouns spellings, okay, to make its plural form. So let us see again more example. Man, men. Tooth, teeth. Mouse, mice. Woman, women. In this way, some nouns change their spellings inside vowels to make its plural. Okay, so let us see the next rule. My dear students, you can see rule number 9 here. Some nouns take EN to make their plural form. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिसका
प्लूरल बनाने के लिए हमें en उसको ज्वाइन करना पड़ता है. सो लेट अस सी द एग्जांपल. ox ऑक्स. तो ऑक्स इस वर्ड का, इस नाउन का प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनेगा? en ज्वाइन करके. इट मीन्स oxen ऑक्सन. ऑक्स ऑक्सन. चाइल्ड चिल्ड्रन. चाइल्ड चिल्ड्रन. In this way some nouns we can see and it makes plural by taking en. Okay. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड्स को हमें en ज्वाइन करके उसका सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ता है. होप्स यू अंडरस्टैंड. लेट अस सी द नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 10. In a hyphenated compound word you must change the first word into plural form. In this rule we can see the hyphenated compound word. It means in this type mother in law. यहाँ पे जो हाइपन दिया है ना, मतलब यहाँ पे हमने छोटा सा डैश जो हम देते हैं उसको हाइपन बोलते हैं. और इस हाइपन दिए हुए जो वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, तो उस वाले वर्ड्स में जब भी वो वर्ड्स आएंगे तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उस वर्ड को ही हमें क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है. बाकी हमारे जो लेटर्स वर्ड्स बचते हैं उसको वैसे की वैसे रहने देना है. सो लेट अस सी हाउ. यू सी हियर इन सिंगुलर फॉर्म स्टेप मदर. यहाँ पे हम प्लूरल उसका बना रहे हैं स्टेप मदर्स. तो यहाँ पे क्या किया है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा मदर, मतलब स्टेप मदर, ये एक ही वर्ड है पर उसका मदर जो है उसका प्लूरल फॉर्म हम मदर्स में करते हैं. ओके, यस लगा के. इन सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी हियर मदर इन लॉ. मदर इन लॉ. मदर डैश इन डैश लॉ. इस तरह से हाइपन देते हुए हमें ये वर्ड दिखाई दे रहा है. हमारा ये पूरा क्या है? नाउन है. और इस नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है कौन सा? मदर. तो इस मदर को ही हमें क्या करना है? सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म बनाना है. इन दिस वे मदर्स इन लॉ. Here in singular we can see mother-in-law, and in plural forms mothers-in-law. It means just first word it has a yes form. It means plural form. We make it first word plural form. Okay. Let us see the next. Son-in-law. Here it's plural form sons-in-law. Next, editor-in-chief. Editors-in-chief. Runner-up. Runners-up. इन दिस वे जब भी हमारे सामने ऐसे डैश देते हुए कुछ वर्ड्स अगर दिखाई देंगे तो उस वर्ड्स में जो फर्स्ट वर्ड होता है उस वर्ड को ही हमें यस लगा के या फिर ईएस लगा के जो भी आपका प्लूरल फॉर्म बनाना है वो इस तरह से फर्स्ट वर्ड को ही हमें यूज़ करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 11. सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं बच्चों कि जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम सेम होता है. मतलब उसको यस भी नहीं लगाते, ईएस नहीं लगाते, उसको आईईएस नहीं लगाते या फिर ईडब्ल्यूएस ईएन, जो भी हमने अभी तक के रूल्स यूज़ किए हैं ना, देखे हैं ना, उसमें से कोई भी रूल इसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म उसके सेम टू सेम रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर शिप. SHEEP, sheep. This is the singular form, and also plural form it also same. SHEEP, sheep. अभी ऐसे जब भी सेम सेम वर्ड होंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वो कितने हैं और सिंगुलर कितने हैं और प्लूरल कितने हैं. तो इसको हम इस तरह से काउंट करते हैं. 1 sheep या फिर many sheep, या फिर यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं 4 sheep, 5 sheep, इस तरह से. और इट मीन्स क्या होता है कि मोर देन 1 sheep. many मीन्स मोर देन 1 sheep. In this way we count this type of nouns in same to same process. Okay. Dozen, dozen. Deer, deer. Pear, pear. In this type of nouns we say that 1 sheep or 4 sheep, 5 sheep as a many sheep. It means more than 1 sheep. Okay. यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स वाले जो भी नाउन्स आते हैं वो सेम भी जब भी आएंगे सेम टू सेम, दोनों साइड में सेम होता है, उसका प्लूरल फॉर्म कुछ चेंज नहीं होता है, वही रहता है. तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, उसका काउंटिंग करते हैं या फिर मेनी वर्ड्स का यूज़ करके उसको शो ऑफ करते हैं कि ये वाला प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड. एंड लेट अस सी द लास्ट एंड डिफरेंट रूल. ओके, रूल नंबर 12. Letters, numbers and figures are made plural by adding yes.
जब भी हमारे किसी सेंटेंस में लेटर्स आते हैं या फिर नंबर्स आते हैं या फिर कोई भी फिगर्स आते हैं, तो उस फिगर्स को हमें अगर उसका प्लूरल फॉर्म बताना है, ज़्यादा फिगर से, ज़्यादा लेटर से या फिर ज़्यादा नंबर से, ऐसे अगर हमें शो ऑफ करना है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ उस नंबर्स के आगे, उस लेटर्स के आगे या फिर उस फिगर्स के आगे सिर्फ यस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। हाउ? लेट अस सी द एग्जांपल। काउंट ऑल द ओज। ओ मतलब यहाँ पे सर्कल का साइन दिया है, फिगर दी है, इट मीन्स सर्कल्स। यस, यहाँ पे स्पेलिंग यू कैन सी हियर, सर्कल्स। ओके, सिर्फ यस लगाया है। एंड स्क्वेयर्स, यस लगा के, स्क्वेयर्स आर दियर। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सी हियर सेकेंड एग्जाम्पल, एड 2 5s, 2 5s एंड 4 2s। यहाँ पे हमें एडिशन करने के लिए बोला है, पर कौन सी? 2 5s, डबल 5, 2 5 लेने के लिए बोला है, 2 5s एंड 4 2s। अभी यहाँ पे 2 5s है, 1 5 है क्या? नहीं, 1 5 होता तो सिर्फ 5 बोल सकते थे या फिर 1 बोल सकते, 1 5, बट यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या बोला है? 2 5s। मतलब इस 5 को प्लूरल फॉर्म में शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे यस का यूज किया है। ओके, ऑल्सो हियर 4 2s। हमें सिर्फ 1 2 नंबर लेना है क्या? नहीं, 4 2 नंबर लेने हैं, मतलब 2 + 2 + 2 + 2। इस तरह से 4 2 का नंबर जब भी हमें शो करना है, इट मीन्स प्लूरल फॉर्म में शो ऑफ करता है, तो उस टाइम हमें इस 2 को यस फॉर्म लगा के उसका प्लूरल फॉर्म हम शो ऑफ कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी लेटर हो, नंबर्स हो या फिर फिगर्स हो, उसको भी हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए यस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। होप्स यू अंडरस्टैंड अवर ऑल द रूल्स ऑफ मेकिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म। Okay students, let us we shall stop here, and I hope you are going to study at your home, and also you study again and again of this video. Okay, bye.